All right. So today we'll be talking about directives and why and how they are useful. Okay, so let me go. Let's And first. sir, yesterday was also we continue on lazy loading. What was that? Can you say that again? Sir, yesterday you were hello, Yeah. hello. Yes, you are audible. Yeah. Go ahead. Okay, sir. Yesterday we were also going to continue lazy loading. Yeah. So yes, we can do that. Basically, the idea was to show how we can load modules lazily. So I thought I had demoed it already. There's not much left on that. Let me show you. This is not the correct project. Just a second. ओके सर, मैंने बस इसलिए कहा कि मतलब हाँ, हम गलती से कुछ मिस ना कर जाएं उसके रिगार्डिंग, इसलिए मैं कहा Okay. इसके लिए. Yep. All right. Okay. So now in order to run this application, we have to start three servers. The first one is the UI, for which we have run this ng-serve. And then the API is also going to be served. Okay. We cannot use that dash o flag here. We have to run the API also, and the third thing which is going to serve our workshops is this CMS. Okay, so we have to start all of these in order to get the entire application up and running. Okay, so regarding lazy loading, just a quick overview. So in the routing, we have already lazily loaded the login screen and the dashboard screen. Inside dashboard, we have different screens, and we had come to a point that we are not going to lazily load them. If we want, we can do that. It is going to be the same syntax. Like instead of this component, I'll create a module for this home component, and then put that load children here and load that module, and inside the module I'll configure the path for home component. That is going to be an empty string there. uh, like it is for dashboard, it is an empty string here. The same way it is going to be inside the home component. So this is about lazy loading, nothing much. Once you start to implement it, at that point you might have some questions. We can address them at that point. So Okay, sir. I'm going to discuss about directives today. So till now we have talked about components, and if I talk of a component has got three essential parts. So if I go to this TS file, so it has this TypeScript, which is the logic of the component. Then it has got this template, which is the HTML file, which this component is going to render. And then there is a style, which this HTML requires. Okay. Now, if I talk about a directive, तो directive में क्या है? Directive is just a piece of logic. उसके अंदर कोई भी HTML या CSS नहीं होती. ठीक है? But why would someone require to limit the functionality? जब मैं उसमें template भी डाल सकता हूँ, उसमें styling भी कर सकता हूँ, then why should someone require a directive which is not going to have these two parts and will only have a functionality associated to it? Uh, anyone has worked on a directive? I know some of you are working on Angular already. No, I don't think. Okay. Okay, okay, fine. So I'll give you a reference.
uh, uh, okay, so you see here ng4. This guy here is a directive. If I talk about this router link, this is also a directive. Uh, since these are directives, they don't have a template associated to them, but they are adding some functionality to this DOM. This ng4 is capable of iterating over this observable or this list. This router link, this is also a directive, and it is going to allow me, whenever the user clicks on this element, it is going to navigate me to this path. Okay, so this way directives are just attributes which you can put on any of the DOM elements. और जब आप वो attributes उस पे लगा देते हो, they provide some functionality. Okay, so let's suppose I want to add a functionality similar to router link. Okay, so I'm going to create something like this. So we'll be creating two directives. One is going to be very basic, like it is just going to add some background color. That is just a hello world kind of a directive, and then we'll implement a complex one. Okay. Okay, sir. Do we have a shared folder? I'll create a folder called shared, and inside that I'm going to create a folder directives, and inside directives, let me open the terminal here. I'm going to create ng generate directive bg color. Okay. So with this, we have got this directive and a test file for that. I'm not going to consider the test file for now, but I have this directive, bg color directive. And if you see, we have a selector for that. And it is an attribute. तो अगर किसी ने CSS पे काम किया है, so this is a CSS selector, which means किसी भी DOM element के ऊपर अगर stream bg color नाम का attribute लगा हुआ है, then this thing gets applied. Okay, fine till here? Fine, sir. Okay, so now what I'll do is I'll go to the I want another thing. I want to have okay, so this is already just in the app module. I don't want to register it in the app module. And there's a reason why I don't want this. Since our dashboard module is a lazily loaded module, and any component or directive which is declared in one module is not accessible to other modules. तो डैशबोर्ड और ऐप मॉड्यूल दे आर दो डिफरेंट मॉड्यूल्स, दोनों अलग अलग मॉड्यूल्स हैं. एक की चीज़ें दूसरे में तब तक अवेलेबल नहीं होंगी जब तक पहला बंदा अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करे और उसके अंदर रजिस्टर्ड हो, मतलब तभी एक्सेसिबल होंगी. आई एम टॉकिंग अबाउट एक फीचर मॉड्यूल है which exposes some functionality, and then there is a parent module which imports that feature module. अगर इस तरह का सेटअप होगा ना, तभी फीचर मॉड्यूल से एक्सपोर्टेड फंक्शनैलिटी अवेलेबल होगी हमारे पास. तो अभी अगर ये जो बीजी कलर डायरेक्टिव है, दिस इज इनसाइड ऐप मॉड्यूल. सिंस इट इज़ इन ऐप मॉड्यूल एंड डैशबोर्ड मॉड्यूल डज नॉट इम्पोर्ट ऐप मॉड्यूल, तो ये डायरेक्टिव कभी भी डैशबोर्ड मॉड्यूल में अवेलेबल नहीं रहेगा. एम आई मेकिंग सेंस? तो सर हमें डैशबोर्ड मॉड्यूल में भी मतलब इसको या फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा अलग से? हाँ, एक कंपोनेंट एक एप्लीकेशन में एक ही बार रजिस्टर हो सकता है, एक से ज़्यादा बार रजिस्टर नहीं हो सकता. मतलब एक ही मॉड्यूल में हो सकता है वो, ज़्यादा से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स में नहीं हो सकता. ओके, तो इसको कैसे करना पड़ेगा सर फिर? हाँ, तो नाउ कंसंट्रेट ऑन द वर्ड्स. एक कंपोनेंट एक ही मॉड्यूल में हो सकता है, एक से ज़्यादा मॉड्यूल में नहीं हो सकता. तो द सोल्यूशन हियर इज I'll create a new module for this bg color directive. I'll call that bg color dot module.ts. Okay, और इस मॉड्यूल फाइल के अंदर मैं इस डायरेक्टिव को रजिस्टर कर दूंगा. तो हमने एक और फीचर मॉड्यूल बना लिया है.
which is a very small one. It only has one directive in it. It is going to be called stream bg color directive. No, directive नहीं, bg color module. ठीक है. And then inside this ng module I have to write some configuration. तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू यूज़ द डेक्लारेशन सेक्शन, क्योंकि मुझे वो डायरेक्टिव डिक्लेयर करना है इसके अंदर. एंड द डायरेक्टिव इज़ कॉल्ड स्ट्रीम बीजी कलर डायरेक्टिव. कैन वी कॉल दिस वन ऑल्सो बीजी कलर. So this is going to declare this directive, and in order for this to expose this functionality, it also has to export it. ठीक है. अगर मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करता हूँ इस मॉड्यूल में से, then any module which imports this bg color module is not going to have access to bg color directive. ठीक है. Okay. So with this, the directive is registered inside this module. Now all I need to do is I need to import this module in any of the modules where I require it. तो अभी मैं इसको ऐप मॉड्यूल में भी डाल सकता हूँ, डैशबोर्ड मॉड्यूल में भी डाल सकता हूँ, किसी मर्जी मॉड्यूल में डाल सकता हूँ. ठीक है. दिस इज जस्ट सिमिलर टू हाउ दिस मैट बटन और मैट टूल बार थिंग्स वर्क. तो मुझे जिस मॉड्यूल में इनकी रिक्वायरमेंट होती है मैं उस मॉड्यूल में इसको डाल देता हूँ. Okay. So this is a very small feature module which has only one feature, that is that directive we are talking of. Okay. तो अभी क्या करते हैं, since we have already talked of those input properties, so I'm going to create an input property. For now I'll call it color, which is going to be a string. Okay. And all I am going to do here is I am going to print the, oh, I don't have the template. So I'll implement after view init. This is a lifecycle hook which I am going to use here. Okay. And I am expecting कि color value set होगी, और मैं उसको log कर रहा हूँ बस अभी के लिए. Okay. So this directive is going to take a color value which is a string, and then it is just logging it on the console. Okay. With this we have the basic version of our directive, and it is already imported in dashboard module. तो मैं dashboard module के अंदर किसी भी बटन के कहीं पे भी नहीं है, बटन हाइड हो जाता है. Let's say on this entire toolbar we have that toolbar. तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कलर प्रॉपर्टी है, it is going to clash with that. So let me do it here. तो अभी मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टिव लगा दिया है, and along with this I have this color property which can take any value, say red. Okay. So let's see on the console what happens. So first of all we have to go to the dashboard screen, because the code we have written is inside dashboard. So till now we should not have any color logged on. Okay, so now you see I am getting this red as the console statement, and it is from bg color directive. Okay, so now let's suppose कि मैं इसके अंदर there is a service in Angular called element ref. I'm going to inject it, private read only element ref. Okay, so what this element ref does is ये डायरेक्टिव जिस भी DOM एलिमेंट पे लगा है ना, उस एलिमेंट की रेफरेंस मुझे ये दे देगा. Okay. And there is an Angular way to do what I'm going to do is I am going to import another service which is called renderer.
which is of type renderer2. ओके, तो मैंने दो सर्विसेज इंजेक्ट करी हैं यहाँ पे, वन इज एलिमेंट रेफ एंड द अदर वन इज रेंडरर. ओके, so inside after view init, what I am going to do is I am saying this dot renderer dot set attribute, और I think there is set style. मुझे स्टाइल लगाना है, इस पे बैकग्राउंड कलर लगाना ना. तो इसका पहला आर्ग्यूमेंट है एलिमेंट, जिसके ऊपर मैं ये एट्रीब्यूट या ये स्टाइल सेट करना चाहता हूँ. सो दिस इज गोइंग टू बी दिस डॉट एलिमेंट डॉट नेटिव एलिमेंट. Then the style value, that is going to be background color, and the third argument is the value. So the value is this dot color. Okay, so let's see how it looks now. So now if you see, the entire thing is having that background red. Okay, and all I have done to achieve that is I have added this directive and then passed this color here. Okay, I can pass in any hexadecimal code also, so let's try that. Let's suppose this is the color I want to use. I'll copy this, and instead of red I can pass this hexadecimal value. Now when the app refreshes, okay, so this is the background color now. So this is a very basic directive. Okay, it has one input property, and wherever it gets applied, it is going to set the background color. Any questions still here? सर डायरेक्टिव का मेन मोटिव क्या हुआ, मेन यूज क्या है? डायरेक्टिव का मेन मोटिव इज टू ऐड सम फंक्शनैलिटी. फंक्शनैलिटी अभी के लिए जो तुम देख रहे हो, दैट इज DOM मैनिपुलेशन. डायरेक्टिव कैन डू मच मोर, नॉट ओनली DOM मैनिपुलेशन. किसी भी तरह का कोड जो तुम्हें लगता है तुम्हें रीयूजेबिलिटी दे सकता है, तो तुम उसको एक डायरेक्टिव में डाल सकते हो. मीन्स इट हैज़ टू बी एप्लीकेबल ऑन सम DOM एलिमेंट. ठीक है. अभी सर जैसे मैंने अभी लाइन रीड की थी, तो इसमें मेन लाइन यही लिखी है कि डायरेक्टिव इज अ फंक्शन that executes whenever the Angular compiler finds it in the DOM. हाँ, तो डायरेक्टिव DOM में ही लगेगा. मीन्स HTML के ऊपर अगर तुम्हें किसी भी तरह से HTML को एक्सटेंड करना है, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि इस फंक्शनैलिटी के लिए टेम्पलेट होना ज़रूरी नहीं है, मतलब इस चीज़ की अपनी कोई टेम्पलेट नहीं है, ये कैसे दिखता है इसका कोई विजिबिलिटी नहीं है. अब मान लो कि मुझे ये चीज़ किसी और पे भी लगानी है. ठीक है, सो सपोज ऑन दिस एलिमेंट, या ये वाला जो है, इसके ऊपर मैं एक रैपर लगा देता हूँ div, and on this guy I want to say the background color for this one should be green. Okay, and then I wrap the router outlet inside it. तो इसके पेरेंट की बैकग्राउंड कलर इज सेट टू दिस कलर, एंड द टूल बार विच, इस टूल बार पे भी ऑलरेडी वो लगा हुआ कलर, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है. बट अगर सपोज मैं इसके ऊपर भी ये लगा देता हूँ, सो नाउ दैट टूल बार इज हैविंग दैट कलर जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया. ठीक है, so it has to be applied on any DOM element, but if you see this is reusable now. ये functionality जो भी इसकी है, I can use it at multiple places and it is going to work for me. राइट सर, तो ऐसे हम फंक्शंस भी बना सकते हैं एक साथ से, कोई फंक्शन जैसे कि कोई ऑन क्लिक वगैरह या होवर का कुछ से. हाँ बिल्कुल बना सकते हैं हम. क्लिक्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं हम, वो सब चीज़ें कर सकते हैं. मतलब मैं एलिमेंट के ऊपर इंटरसेप्शंस कर सकता हूँ. मान लो कि मुझे लॉग करना है, जब भी किसी एक एलिमेंट के ऊपर यूज़र क्लिक करता है, आई वांट टू लॉग दैट क्लिक. ओके, सो आई कैन डू दैट. सो लेट्स डू इट इन दिस कंपोनेंट, इन दिस डायरेक्टिव. सो मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंट रेफरेंस है. ठीक है,
this dot renderer dot listen, then I have to pass the target element, native element और event, suppose मैं click event को listen करना चाहता हूँ, and then what I want here is so you see it is saying element clicked. Yes sir. ठीक है। तो मैं इस तरह की चीज़ों को इंटरसेप्ट कर सकता हूँ। द रीज़न आई एम यूजिंग रेंडरर इज़ द सेम। हमने शायद इसके बारे में पहले भी बात करी है। मैं डायरेक्टली उस डॉम एलिमेंट को एक कैप्चर करके डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर जैसी चीज़ें कर सकता था, बट इफ़ आई स्टार्ट टू डू दैट, दैट इज़ नॉट द एंगुलर वे टू डू इट, क्योंकि इन दैट केस आई एम डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग डॉम विच इज़ नॉट समथिंग विच इज़ you know promoted by the Angular community. So this is the correct way to do that. Okay. So this is another thing which we could do with this directives. Okay, so now suppose क्योंकि मैंने अभी क्लिक को कैप्चर कर लिया है, so now suppose मैं नेविगेट करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन द क्लिक टू सम राउट। ओके, जैसे कि राउटर लिंक कर रहा है, ठीक है। सो नाउ सपोज मैं यहाँ पे एक और मीन्स इनपुट आप क्लिक करोगे तो से दैट अगेन। क्लिक पे सर आप कह रहे हो कि राउटर लिंक की आप मीन कि यहाँ पे हम ये करने जा रहे हैं कि कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे तो हम राउटर लिंक के तो किसी और स्क्रीन पे भी चले जाएंगे, हाँ कहीं पे बिल्कुल भी क्लिक बिल्कुल। करने पे। हाँ तो कहीं पे भी नहीं, मतलब मैं जिस पे कॉन्फ़िगर करूँगा उसी पे, जैसे मान लो कि अभी एक कंपोनेंट मेरे पास अवेलेबल है, सो आई टेक दिस कंपोनेंट और यहाँ से मैं राउटर आउटलेट हटा देता हूँ, राउटर लिंक हटा देता हूँ, ठीक है। दैट इज़ इनसाइड दिस होम। तो यहाँ पे राउटर लिंक जो लगा है ना, आई रिमूव दिस विद दिस डायरेक्टिव, ओके, एंड देन राउट सेगमेंट्स करके कुछ रखी थी प्रॉपर्टी हमने, या राउट सेगमेंट्स। Okay, so I'm saying route segments takes an array of any. Okay, तो मैं इस राउट सेगमेंट्स को ये एरे दे रहा हूँ। अब मैंने राउटर लिंक हटा दिया यहाँ से, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ इज, यहाँ पे जब मैंने क्लिक को इंटरसेप्ट किया है, इस पॉइंट पे मैं चेक करूँगा इफ दिस डॉट राउट सेगमेंट्स इज डिफाइंड, इफ यस, नेविगेशन के लिए मुझे राउटर सर्विस चाहिए, प्राइवेट रीड ओनली, ये कौन सा आ गया, so if the router segment is defined, then I'll say this dot router dot navigate and pass this dot route segments to it. Okay, so अभी अगर मैं home screen पे हूँ, this is the home screen, and let's put some debuggers. That directive was called bg color directive. Okay, तो मैं यहाँ पे डिबगर लगा रहा हूँ, एंड इफ आई क्लिक दिस, तो राउट सेगमेंट्स के अंदर एक एरे है जिसके अंदर ये डिफाइंड है पाथ कहाँ जाना है। सो इफ आई कंटिन्यू, cannot match any routes URL segment. Oh, okay. So since that route, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने ना relative दिया हुआ है ये, ठीक है। सो इफ दिस दिस इज relative, तो मुझे इसको करंट राउट भी देना पड़ेगा।
अगर वो एब्सोल्यूट राउट होता देन इट वुड हैव वर्कड। मीन्स वहाँ पे कंप्लीट राउट देना हाँ पड़ता तो बिल्कुल वर्क बिल्कुल। करता। हाँ, सो जो वो डायरेक्टिव है ना राउटर लिंक, वो भी इंटरनली यही कर रहा है जो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सो इट प्रोवाइड्स दिस डॉट राउट राउट। सो अभी मैंने क्या बोल दिया है कि इस राउट सेगमेंट पे जाना है वेयर दिस राउट इज रिलेटिव टू द करंट राउट। ओके, so again I click it and this time it has redirected me to the correct screen. ठीक है, I can put a debugger again. So when I click this, so it has again those segments and this activated route has the current route. So I am saying relative to this route I want to navigate and it takes me to that screen. Okay, so this is kind of functionality which a directive can provide us. ऑलराइट। Okay. So the directives we have talked of till now are called attribute directives. There's another class of directives that those are called structural directives. And what those directives do is वो ना DOM के structure को change करते हैं. These guys add some functionality to the DOM. They are going to change the structure of the DOM. And there is a special distinction between a structural and an attribute directive. जितने भी structural directives है ना, they start with an asterisk like ngIf, ngFor. अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये एक directive है and since it is starting with this asterisk symbol, this means ये एक structural directive है. Okay. So let's create a structural directive. So we are going to basically create a directive which is going to work similar to ngIf. ठीक है, and then I'll tell you how these structural directives work behind the scenes. My if. So I'm going to call it my if. So I'll create ng generate directive my if. रिकॉर्डिंग ऑन है सर? हाँ जी ऑन है जी. Okay. So this is the name of this directive. Okay, it is called stream my if. अब इस डायरेक्टिव के अंदर मुझे इसको एज ए स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करना है. सो इफ आई वांट टू यूज दैट, first of all, before going to a structural directive, I want to show how the structural directive looks like when it is compiled. तो मैं एक ngIf लेता हूँ. अगर यहाँ कहीं लगी है तो let's find out. Okay, login screen पे एक ngIf लगी हुई है. So I'll take this as a reference. I'll simulate how it looks like. So I'm going to wrap this thing with the ng template. Okay, and then take this span and remove this star and put the brackets around it. Okay. तो यहाँ तक मैंने क्या किया कि एक डायरेक्टिव को जिसके आगे स्टार लगा था उसका स्टार हटा के एक तो उसको ng टेम्पलेट में रैप कर दिया. And then I have wrapped that directive name into this square brackets. Okay, fine till here. So if this is how the structural directive is, yeah, what's that? इसको हमने सर स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्यों कवर किया है? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसलिए किया है क्योंकि अगर मुझे कोई भी वैल्यू पास करनी होती है ना, देन आई हैव टू रैप इट इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट्स. बेसिकली मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि जो भी मैं वैल्यू तुम्हें दे रहा हूँ ना, दैट इज़ नॉट अ लिटरल स्ट्रिंग. वो एक लिटरल स्ट्रिंग नहीं है. दैट कैन बी अ वेरिएबल, दैट कैन बी अ वैल्यू. तो यहाँ पे मैं इसको एक बूलियन वैल्यू दे रहा हूँ. अगर मैं ये इसको इसमें नहीं रैप करता हूँ ना, देन दिस थिंग इज टेकन एज अ लिटरल स्ट्रिंग.
मतलब अगर मुझे एक स्ट्रिंग पास करनी होती इसको एंड आई वाज यूजिंग दिस, तो मैं कुछ ऐसा लिखता, इसको सिंगल कोट्स में रैप कर देता. So if I don't put these brackets, so it is equivalent to passing in a string to this guy. Okay, तो अभी इसको जो इनपुट मिलेगी ना, that is going to be a string where first character is that exclamation and then the word password visible. It is not the value of this variable. If I want to pass the value of this variable, I have to wrap this inside these brackets. Okay, so let's first of all see, अगर मैं सच बोल रहा हूँ और ऐसा ही होता है, तो मेरा वो जो visibility वाला बटन था, that should start to work. वो है ही नहीं यहाँ पे, था नहीं क्या वो? हाँ सर. अच्छा, तो हाँ, देखा मैं झूठ बोल रहा हूँ. इंटरेस्टिंग. Okay. Might be doing something wrong, एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ जी सर. ओह, टेम्पलेट के ऊपर लगता है वो, सॉरी. So it does not go inside here, it gets applied on the template here. Okay. So this is how it gets translated. जब मैं star ng लिखता हूँ, so it gets applied on this ng template. Okay, so let's see this again. So irrespective of the position, वो position इसलिए हिल गई है क्योंकि मैंने उसको उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, और जो क्लास लगी हुई थी वो हमने इसके ऊपर लगाई थी. यहाँ पे जो भी इसकी डिज़ाइनिंग है वो एक्चुअली स्पैन के ऊपर हुई है. मैट सफिक्स उस पर लगा एक्चुअली. मैं अगर इस पर लगा दूँ, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट. हाँ, सो इट इज़ वर्किंग. सो दिस इज़ जस्ट फाइन. इफ आई टाइप इन, ठीक है, सो द फंक्शनैलिटी इज स्टिल वर्किंग. और मैंने एन जी टेम्पलेट को ऐड कर दिया है, एंड स्टार एन जी इफ की बजाय मैंने एन जी इफ लिख दिया. ओके, टिल हियर एवरीथिंग फाइन. यस और नो? फाइन सर, लेकिन हेलो. अभी हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स बना रहे हैं ना, तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि उसके आगे स्टार लगाकर वो यूज होगा. हाँ, तो मैं सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में लिखना है ना, वो जब मैं लिखूंगा ना, कुछ समझ नहीं लगेगा कि ये सब मैंने क्यों इंजेक्ट किया है. सो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव एक्चुअली ट्रांसलेट कैसे होता है बिहाइंड द सीन्स, एंड देन वील क्रिएट वन, एंड देन वील सी अच्छा कि ये चीज़ यहाँ से आ रही थी. Okay, उस तरह का मैं एक वो लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी. The last thing I want to show here is this guy. विजिबिलिटी वाला है ना? हाँ, विजिबिलिटी. कहाँ लिखा है? तो ये जो लिखा है विजिबिलिटी, जब ये हिडन होता है ना, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक कमेंट है, ठीक है, विच इज सेइंग आई एम करंटली फॉल्स. ठीक है, और जैसे ही वो वैल्यू टॉगल होती है, देन दैट कमेंट इज गॉन एंड दिस गाय इज अपीयरिंग नाउ. ओके, तो चलो पहले वो बनाते हैं, एंड देन आई टेल व्हाट आई एम सेइंग. ठीक. सो दिस इज़ द डायरेक्टिव. अब इस डायरेक्टिव के अंदर ना मैं दो सर्विसेज इंजेक्ट करने वाला हूँ. सो द फर्स्ट वन इज प्राइवेट रीड ओनली
पहले कंटेनर कर लेते हैं. The first one is view container ref. Okay. Read only. Let's again for once go here. अच्छा. तो यहाँ पे भी इन्होंने, अगर आप देख रहे हो तो जब वो कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है, एक कमेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के साथ ना, एक कमेंट एलिमेंट होता है और फिर एक डॉम एलिमेंट होता है. जब भी वो कंडीशन ट्रू होती है देन दैट डॉम एलिमेंट अपीयर्स. जब भी वो कंडीशन फॉल्स होती है देन दैट डॉम एलिमेंट डज नॉट अपीयर. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एनजी इफ बेसिकली. तो ये जो कंटेंट कमेंट है ना, दिस इज द कंटेनर. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने व्यू कंटेनर रेफ को इंजेक्ट किया ना, आई एम बेसिकली रेफरिंग टू दैट कमेंट एलिमेंट. और ये जो टेम्पलेट है, आई एम रेफरिंग टू द टेम्पलेट विच दिस एन जी इफ इज अप्लाइड ऑन. जैसे मैं एलिमेंट रेफ इंजेक्ट कर रहा था तो मुझे वो एलिमेंट मिल रहा था, अभी मैं टेम्पलेट रेफ इंजेक्ट कर रहा हूँ. ओके, सो मुझे वो टेम्पलेट एलिमेंट मिलेगा. टिल हियर ऑल गुड? Yes, sir. Okay, great. So now I am going to create an input property, and the nice thing about this input property is कि मैं इस input property को सेम ही नाम दे रहा हूँ जो मेरे डायरेक्टिव का नाम है. Okay, fine till here? Yes, sir. Okay. So now I am going to add another life cycle hook that is called ng on changes. On changes. Okay, and I'll implement that one. तो इसके अंदर आई एम गोइंग टू चेक इफ changes dot this, अगर changes के अंदर मुझे ng if की वैल्यू मिली है, changes dot चलो बस इतना ही कर लेते हैं. If this exists, then I am going to check if changes dot string dot current value. तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि करंट वैल्यू को एक बुलियन में कन्वर्ट करो, क्योंकि करंट वैल्यू कैन बी अनडिफाइंड, नल, एनीथिंग. तो मैं उसको एक बुलियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम सेइंग इफ इट इज ट्रू देन this dot container dot create embedded view, and this takes a template reference. Okay, so I'll part this dot template ref. Okay, else अगर वो false है, I'm saying this dot container dot clear. क्या कह रहे हैं? Redundant double negation. क्यों? अच्छा, ठीक है यार, ऐसे कर लेते हैं. It is complaining for those double negations. वो कह रहा है कि undefined भी तो false ही होता है. So it doesn't like that, and that's fine to me. So this is a basic structural directive. तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो तुम क्या करो, इस कंटेनर के अंदर ना इस टेम्पलेट को डाल दो. ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस कंटेनर के अंदर जो भी है इसको क्लियर कर दो, मतलब उस डॉम एलिमेंट को हटा दो वहाँ से. So let's try if that works. For that we have to first of all create a module for this one.
I'll say my if module.ts ng module export class. In the same way, I have to declare that directive first of all. My if directive, and then I'll export it from this module. Now I can import this in the login module and replace ngIf with the one we have created. Okay, I go here. Hmm. Okay, so let's try. Instead of this ngIf, I am simply going to say stream my if, and let's see if this works. There is some error. I think I need to restart the server. Oh, okay. No. The problem is वो ऐप मॉड्यूल में भी रजिस्टर हो गया, यहाँ किसी और में रजिस्टर हो गया, पता नहीं. इसको फाइंड कर लेते हैं. बीजी कलर, अच्छा इसके अंदर रजिस्टर हो गया. सो यू सी, अगर मैं एक ही चीज़ को दो जगह पे रजिस्टर करता हूँ, सो इट स्टार्ट्स टू कंप्लेन एंड इट इज सेइंग इट इज़ लिस्टेड इन डेक्लेरेशंस ऑफ मल्टीपल एनजी मॉड्यूल्स. दैट इज़ नॉट अलाउड, इसीलिए हम एक फीचर मॉड्यूल अलग से बना रहे हैं. सो नाउ तो इट इज. यहाँ पे तो सर हमने इंपोर्ट किया नहीं था इसको, इसमें डिक्लेयर हाँ, तो किया मैंने था सी एल हमने आई मैंने सी एल आई के साथ बनाया ना, तो सी एल आई व्हाट इट डज इज वो नियरेस्ट मॉड्यूल फाइल देखता है और उसके अंदर डिक्लेयर कर देता है. तो इसके नियरेस्ट ओके मॉड्यूल फाइल उसको ये मिली थी, तो उसने इसमें डाल दिया उसको. क्रिएशन के टाइम पे. हाँ जी. Now what it is saying, कंसोल पे आ रहा था क्या अभी? डिटेल्स, अच्छा ठीक है. appears that bg color module but itself has errors. पता नहीं क्या कह रहा है. bg color एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको. Okay, so this is the code we have written. I'm waiting for that server to start. Till then, यहाँ पे हमने template ref और container ref को import करा हुआ है, and then we are checking for some condition, and based on that condition we are adding that template ref, or otherwise we are clearing that container. So this is what we have done in our code also. Uh, so this should ideally work. Okay. So we are in this login screen, and if I type in something, so you see that icon is changing, and I am not using ngIf here now. The one I am using is stream my if. Okay, and let's use the other one as, instead of ngIf I'll use stream my if. Okay, so this is a replacement of ngIf currently. So let me type in something, and then I'll click on this,
So the same functionality is still working, and now I am not using ngIf, I am using this custom directive. Okay, and if I look on the DOM, so it is going to add or remove the element based on the condition. तो अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, this visibility of element is visible. If I click on that, that guy is removed from the DOM, and then this visibility element has been injected. Okay. So these are two classes of directives. One are attribute directives and the other one are the structural directives. And this is how they are written. अब एक यूज़ केस हम डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने रिसेंटली किया था. सो क्या था हमारी एप्लीकेशन के अंदर ना, एक एक फ्लो है, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन फ्लो है. किसी तरह का हम एक फॉर्म फिल कराते हैं यूज़र से, ठीक है. और हमारे पास ना उस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स होने वाले थे. मतलब यूज़र ने इनिशियली क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, और उन फॉर्म्स के अंदर अलग अलग इनपुट वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है. तो व्हाट वी डिड इज़, हमने हर एक प्रोडक्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाई. वी पुट इट ऑन आवर कॉन्फ़िगरेशन लेयर, और जैसे ही वो फ्लो स्टार्ट होता ना, वी फेच दैट कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन वी क्रिएटेड अ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव टू विच वी वुड पास कि कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया यूज़र ने, और बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट साथ में हम उस स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को ना इस कंपोनेंट का नाम दे देते. सो एवरी कंपोनेंट इन आवर फॉर्म हैड अ नेम, ठीक है. तो हम उस स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को, जैसे इसको, हम दो वैल्यूज़ दे देते थे. द फर्स्ट वन वुड बी द प्रोडक्ट एंड द अदर वन वुड बी द नेम ऑफ द कंट्रोल. तो वो उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेक करता था, अच्छा इस प्रोडक्ट के लिए ये कंट्रोल दिखाना है या नहीं दिखाना, ठीक है. सो दैट वाज समथिंग वी क्रिएटेड फॉर आवर इम्प्लीमेंटेशन. बेसिक एन जी इफ के साथ भी वो कर सकते थे, बट इट वुड हैव बीन वेरी कॉम्प्लेक्स क्योंकि सारा कुछ मुझे टेम्पलेट में ही लिखना पड़ता. सो वी एब्स्ट्रैक्टेड दैट थिंग आउट. तो that was a nice neat implementation which everyone liked. So yeah, this is one use case which I had encountered for these structural directives. There can be others also. आप रोल बेस्ड, कोई आपको सपोज आप मेन्यू आइटम्स हाइड करना चाहते हो अगर यूज़र इस रोल में नहीं है, तो ठीक है. तो यू कैन पुट दोज स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स. आप एक यूज़र पास कर दो, दैट डायरेक्टिव चेक्स फॉर द रोल ऑफ द यूज़र एंड देन इट फेचेज अ कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे उसको पता चलता है अच्छा कौन सी मेन्यू आइटम किस रोल को दिखानी है, एंड देन इट शोज और हाइड्स दैट मेन्यू आइटम. इस तरह के यूज़ केसेस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसके साथ. इट मीन्स कि सर हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स में मल्टीपल फंक्शनैलिटीज ऐड करके को सिंगल ऐप पे यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टार स्ट्रीम में किया. हाँ बिल्कुल. ओके ग्रेट. So can we use this as in scenarios where say मेरा एक कोई वर्कफ्लो है जिसकी जिसकी स्टेजेस हैं, जैसे पेंडिंग स्टेट में है पहले, आई मीन एक एक फिर उसके बाद वो एक्टिव हो गया या इन प्रोग्रेस हो गया, फिर वो किसी और स्टेट में गया. तो उन सपोज I might have different inputs which I need to take from the user. Exactly. उस केस में हम कर सकते हैं इसको यूज. But that those states will I mean वो जो states हैं वो हो सकता है डायनेमिक इन नेचर हो, तो फिर this will become even more complicated, I suppose, right? अगर upfront हमें पता है कि these are the states and these are the forms going to be appearing for those states, then is it like a good approach to hard code those states itself in the application? No, I don't think we should be doing hard coding those. What I prefer is, even though आपको सब पता है कि क्या क्या होने वाला है, I would still go for a configuration layer जहाँ पे मैं एक maybe एक plain JSON रख दूँ, and that component should be, that directive should be able to somehow get that JSON. It can be a network request or some other component providing that JSON to that directive. किसी भी तरह से that JSON reaches there, it parses it and understands अच्छा ठीक है ये configuration है, इसके basis पे मुझे काम करना.
Mm-hmm. This configuration can be maintained step P or something similar as well. Yes. Supposing. Mm-hmm. Okay. All right. So this was it for my side today. So we had discussed two type of directives. One are attribute, and the other one are structural directives. और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स के अंदर हमने पहले तो एक बैकग्राउंड वाला इम्प्लीमेंट करा एंड देन वी इंटरसेप्टेड द क्लिक इवेंट्स ऑन दैट DOM एलिमेंट and we implemented how router link works internally. Then we replicated what ngIf might be doing behind the scenes. So yeah, this is it. Any questions you can ask? If no, then we can close the call. Okay. Thanks. Thank you. Have a good day. रोहित सर, हाँ जी. तो जैसे सर हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में हम मल्टीपल फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं. मल्टीपल फंक्शनैलिटीज ऐड करने के बाद हम डिफरेंट मतलब पूरी एप्लीकेशन में अगर यूज करना चाहें तो मतलब ये पॉसिबल है ऐसे, जैसे स्ट्रीम माइफ को मैं और भी मॉड्यूल्स में इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना. और उसके मॉड्यूल को जिस मर्जी मॉड्यूल में इंपोर्ट कर लो एंड देन दैट फंक्शनैलिटी इज अवेलेबल थ्रू आउट दैट मॉड्यूल. सर मुझे एक चीज की क्लैरिटी नहीं हुई अभी कि जैसे हम यहाँ पे मॉड्यूल को डिफरेंट मॉड्यूल्स में इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आपने पहले बताया था तो मुझे वो चीज क्लियर नहीं हुई कि हम एक ही जगह पे इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी था. हाँ तो this needs a complete discussion. I'll try to give a glimpse. तो एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर ना जो चीज़ें हैं I'll write down. एक मॉड्यूल हो सकता है, then there can be a directive, then there can be a component, then there can be a pipe, then there can be a service. I think these are the only ones. तो these are the building blocks of an angular application. ठीक है, इन सभी को यूज़ करके तुम एक एंगुलर एप्लीकेशन बना सकते हो. सो नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि एंगुलर कौन सी चीज़ को किस लेवल तक रखती है. ठीक है, सो इफ आई टॉक ऑफ एन एंगुलर एप्लीकेशन तो रूट पे ऐप मॉड्यूल होता है. ठीक है, वन एप्लीकेशन लेआउट कैन बी कि ऐप मॉड्यूल के अंदर component 1 है, component 1 and then it has a sibling component 2, then it has a sibling component 3. तो ये तीनों इस लेवल पे हैं. मतलब ये मान लो ये लॉगिन स्क्रीन डैशबोर्ड ये दो हैं. तो मैं ऐसा कर लेता हूँ. सो द लॉगिन स्क्रीन एंड द डैशबोर्ड आर द टू सिबलिंग कंपोनेंट्स, राइट. फिर डैशबोर्ड के अंडर मेरे पास होम कंपोनेंट है. ठीक है, एंड देन होम कंपोनेंट के साथ वी हैड एन ओवरव्यू कंपोनेंट. ठीक है, दिस कैन बी वन पैटर्न फॉर क्रिएटिंग द एप्लीकेशन. द अदर पैटर्न कुड बी ऐप मॉड्यूल के नीचे लॉगिन मॉड्यूल. ठीक है, एंड उसका सिबलिंग डैशबोर्ड मॉड्यूल. ठीक है, डैशबोर्ड मॉड्यूल के अंदर जो पहला कंपोनेंट है दैट कुड बी डैशबोर्ड कंपोनेंट. ओके, और इसके राउटर आउटलेट के अंदर होम कंपोनेंट और ओवरव्यू कंपोनेंट. सो दीज आर मतलब हो सकता था होम का भी अपना मॉड्यूल होता है एंड देन होम मॉड्यूल के नीचे होम कंपोनेंट होता एंड सिमिलरली ओवरव्यू मॉड्यूल और उसके नीचे ओवरव्यू कंपोनेंट. तो इस तरह से एक हायरार्की होती है एक एप्लीकेशन की, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू टेल हियर इज ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना एक्सेप्ट मॉड्यूल, एक्चुअली इंक्लूडिंग मॉड्यूल, तो ये सभी किसी भी मॉड्यूल लेवल पे जा सकती हैं.
a module can be imported at a module, a directive can be declared at a module, component also can be declared at a module, pipe also can be declared at a module, and service can be provided in a module. ओके, तो फ़र्क क्या है? जब तुम सर्विस को किसी मॉड्यूल पे प्रोवाइड करते हो, जैसे मैं बात करता हूँ इस स्ट्रक्चर की अभी, अगर मैं इस सर्विस को ऐप मॉड्यूल पे प्रोवाइड कर देता हूँ, then this service is available to anyone under this module. ठीक है, इसका मतलब है डैशबोर्ड मॉड्यूल के अंदर भी जो कंपोनेंट्स है ना, उनको भी सर्विस का एक्सेस होगा. ठीक है, बट अगर इस सर्विस को मैंने इंस्टेड ऑफ ऐप मॉड्यूल डैशबोर्ड मॉड्यूल में किया प्रोवाइड, तो लॉगिन मॉड्यूल को इसका एक्सेस नहीं होगा, ना ही ऐप मॉड्यूल को होगा. डैशबोर्ड कंपोनेंट को होगा, होम कंपोनेंट को होगा और ओवरव्यू कंपोनेंट को होगा. ठीक है, दिस इज वन थिंग. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द अदर थ्री गाइज, डायरेक्टिव, कंपोनेंट एंड पाइप. तो अगर मैंने एक डायरेक्टिव को या कंपोनेंट को या पाइप को किसी एक मॉड्यूल पे डिक्लेयर किया है, तो इनका एक्सेस सिर्फ इसी मॉड्यूल में है. दिस इज स्लाइट डिस्टिंक्शन विद द सर्विस. अगर मैंने सर्विस को ऐप मॉड्यूल पे प्रोवाइड कर दिया है तो सारी एप्लीकेशन को उसका एक्सेस है. बट अगर किसी डायरेक्टिव को मैंने ऐप मॉड्यूल में डिक्लेयर कर दिया है तो बाकी मॉड्यूल्स उसको नहीं यूज कर सकते. ओके, ठीक है, अगर इसको वो यूज करना है तो या तो वो कंपोनेंट इसके अंदर रजिस्टर्ड हो, बट एक कंपोनेंट दो मॉड्यूल्स में रजिस्टर हो नहीं सकता. उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम एक सेपरेट लेग बनाते हैं विच वी कॉल शेयर्ड मॉड्यूल और फीचर मॉड्यूल, शेयर्ड फीचर मॉड्यूल्स. ओके, तो हमने अभी ऐसे किया था कि मॉड्यूल के अंदर उस डायरेक्टिव को लेकर आए थे और फिर उस मॉड्यूल को बाकी जगह पे यूज किया था. एग्जैक्टली. तो मैंने क्या किया कि मैंने उस डायरेक्टिव के लिए एक मॉड्यूल बना दिया. जैसे कि मैं डायरेक्टिव की बात कर रहा था, माई स्ट्रीम बीजी. ठीक है, ये एक डायरेक्टिव है. ठीक है, तो इस फीचर मॉड्यूल का भी नाम था स्ट्रीम बीजी मॉड्यूल, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो ये स्ट्रीम बीजी मॉड्यूल के अंदर माई स्ट्रीम बीजी डायरेक्टिव है. और मुझे जिस भी मॉड्यूल में इसको यूज़ करना है ना, अगर मुझे ऐप मॉड्यूल में यूज़ करना है देन आई हैव टू इम्पोर्ट दिस मॉड्यूल इनटू ऐप मॉड्यूल. अगर मुझे डैशबोर्ड लेवल पे इसको यूज़ करना है देन आई हैव टू इम्पोर्ट दिस मॉड्यूल ऑन द डैशबोर्ड लेवल ऑल्सो. एंड क्योंकि ये डायरेक्टिव जो जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, इस डायरेक्टिव की जो हम बात कर रहे हैं, ये इस मॉड्यूल में रजिस्टर्ड है, तो एनी मॉड्यूल विच इंपोर्ट्स दिस मॉड्यूल गेट्स दिस फंक्शनैलिटी. ऑलराइट सर. ठीक है, डिड आई राइट एवरीथिंग हियर? हाँ, मतलब दिस फ्लो is applicable to all pipe, component and directive. Except providers, everyone is like this. Providers जिस लेवल पे रजिस्टर होते हैं उससे नीचे सब जगह अवेलेबल होते हैं. Declarations जिस लेवल पे डिक्लेयर होती हैं उसी लेवल पे अलाउड होती हैं, उसके नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं. और सिबलिंग्स में भी नहीं. नहीं, सिबलिंग्स में तो कभी भी नहीं. तो सर डायरेक्टिव के साथ हम कंपोनेंट और पाइप को भी ऐसे मॉड्यूल में लाकर यूज कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल. ठीक है. Okay. So yeah, this is it. Any other questions? I think no sir. Okay. All right. So I'll stop recording. This is it from my side. Have a good day. We'll meet tomorrow. Have a good day sir. Thank you.